Dear students, as I was thinking, the majority of my audience are undergraduate students, right? My students, please raise the hands. Okay, Ayurvedic final year students. Okay. So my today's topic is Unani medical management of BPH, benign prostatic hyperplasia. First of all, why I have chosen this topic for this today's session? First of all, this is very important topic, very common condition, benign prostatic hyperplasia. अगर आप देखेंगे about 60 male patients with urinary symptoms, 80% are due to this BPH. तो पहली बात ये कि बहुत कॉमन कंडीशन है. दूसरी बात ये है कि जितने कन्वेंशनल मॉडर्न मेडिसिनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉर BPH, दे आर हैविंग सेवियर. यू आर यूज्ड टू फॉर बोथ लैंग्वेजेस, राइट? इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, संस्कृत. तो जितने मेडिकल मैनेजमेंट है BPH के लिए, उसमें से अक्सर मॉडर्न ट्रीटमेंट के बहुत सारे अनवांटेड साइड इफेक्ट्स हैं. अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो जितनी दवाएं यूज होती है, जितने ड्रग्स यूज होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, एवरीबडी नोज द साइड इफेक्ट्स लाइक डिजीनेस, ड्रोजीनेस, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ejaculation disorders, etc. जो सर्जरी प्रोस्टेट के लिए की जाती है उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी लॉस ऑफ लिबिडो होता है, उससे भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है. तो ऐसी सब सिचुएशन में पेशेंट नीड एनी अल्टरनेटिव सेफ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो आयुर्वेद में भी मैं समझता हूँ ट्रीटमेंट है, और यूनानी में भी बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है BPH के लिए. तो because of this reason I have chosen this topic for today's session, benign prostatic hyperplasia. मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अंडरग्रेजुएट लेवल पर होकर बात करूं. What is the synonyms? Senile enlargement of the prostate, adenoma of prostate, adenomyoma of prostate, and these are the Unani terms. किब्र कद्दामिया, कद्दामिया प्रोस्टेट ग्लैंड को कहते हैं यूनानी में. बेशतगुनीय गुद्दे मजी, सुलय गुद्दे मजी हमीदा. These are the Unani terms for BPH. Everybody knows hypertrophy and hyperplasia, I think. Need to clarify here. What is hypertrophy and what is hyperplasia? This is hyperplasia. In hyperplasia, can anybody please? My session is interactive. कोई बता सकता है hyperplasia क्या होता है? देखिए, आपको जरा भी टेंस होने की जरूरत नहीं. यूनानी, आयुर्वेद, लेवल, स्टैंडर्ड, स्टडी तकरीबन सेम होती है. स्टूडेंट्स का लेवल भी तकरीबन सेम होता है. तो यू आर फ्री, टेंशन फ्री. आप समझिए आपका फाइनल ईयर क्लासरूम में एक लेक्चर हो रहा है, ठीक है? सो व्हाट इज हाइपरप्लेजिया? प्लीज. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. वेरी गुड. एंड व्हाट इज हाइपरट्रॉफी? साइज ऑफ सेल्स. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल डेवलप होता है, वो हाइपरट्रॉफी होती है. लेकिन जहां नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं वो हाइपरप्लेजिया होता है. हाइपरट्रॉफी की बहुत सारी टाइप्स है. एक टाइप ये भी है कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी. जैसे किसी का एक हाथ कट गया, वो एक ही हाथ से पूरा काम कर रहा है तो उसका हाथ डेवलप हो जाएगा, मसल ज्यादा डेवलप हो जाएगा. दैट इज कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी. जैसे किसी को सिर्फ एक किडनी है, वो जो दोनों किडनी का डोज ले रही सिंस बर्थ, पर्सन इज हैविंग सिंगल किडनी. So compensatory hypertrophy of single kidney, that is hypertrophy. And this is hyperplasia, means increase in size of tissue or organ due to increase in number of cells. Okay, so introduction. Benign prostatic hyperplasia usually occurs at the age of 50 years. By the age of 60 years, about 50% of men having histological evidence of BPH and 15% having significant lower urinary tract infection. You can see the condition, how the condition is common. 50 years के बाद histological evidence हो जाता है, मतलब symptoms develop नहीं होते हैं. और 60 years के बाद बहुत सारे patients में urinary symptoms develop हो जाते हैं because of enlargement of prostate gland. This is normal prostate. First figure, the prostate gland. The urethra surrounded by the prostate gland is called prostatic urethra. In normal condition, there is no any compression of urethra. There is no any compression on urethra. So urethra is open. There is no any bladder outlet obstruction, as their size of prostate is normal. In another picture, enlarged prostate. Because of enlargement of prostate, urethra is compressed, and because of this compression,
urinary obstruction, that is called as bladder outlet obstruction. Prostate gland, I have prepared this lecture in 3 parts. In first few slides, I will try to cover anatomy, physiology, and the signs, symptoms of the disease. In second slide, I will talk on diagnosis and differential diagnosis of the disease. And in the third part, I will cover the treatment modalities available in modern system of medicine and the treatment modalities available in Unani system of medicine and comparison on both the treatment. So this is prostate gland is fibromuscular gland. It is the accessory organ of male reproductive system. In female, it is represented by paraurethral gland of Skinner. Location, prostate gland is located in lesser pelvis, below the neck of urinary bladder, behind the lower part of the pubic symphysis and the upper part of the pubic arch. So this gland is fibromuscular gland. Fibrous element is also there, muscular element is also there, and glandular element is also there. In front of ampulla, it is located in front of ampulla of rectum, hence it can be palpated on per rectal examination. Normal prostate gland cannot be palpated, but enlarged prostate gland can be palpated on the anterior wall of the rectum on PR examination. The initial part of urethra is called as prostatic urethra because 3 cm of urethra is surrounded by the prostate gland. The morphology, size 4 into 3 into 2 cm, length 3 cm, thickness 2 cm, and width is 4 cm. Shape, inverted cone shape, weight is 8 gram, average weight is 8 to 20 gram. How can we measure the weight of prostate gland? आदमी को गिनने का उसमें से prostate का weight अलग कर देगा मशीन पे चढ़ा के. How can we measure? By sonography. By the help of USG. आपको prostate का weight sonography की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है. Previous please. तो average weight 8 से 20 ग्राम है. अगर 25 ग्राम्स होता है, 30 ग्राम्स होता है तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं. 30 to 50 ग्राम से माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं. अगर वेट 50 ग्राम से ज्यादा हो जाता है तो सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं. दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट. कभी कभी साइज बड़ी होती है, पेशेंट सिम्टम फ्री होता है. आई एम टेलिंग अबाउट द यूजुअल पिक्चर. ऐसा समझा जाता है कि जब प्रोस्टेट का वेट 100 ग्राम से ज्यादा होता है तो इट नीड सर्जिकल इंटरवेंशन. फिर उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं होती सिम्टम्स में और उसको सर्जरी की जरूरत होती है. Gross features: prostate has apex, base, 4 surfaces: anterior, posterior, right lateral, left lateral. This is just a reminder of reminding. I am just trying to reminding the anatomy and physiology. Prostate gland को हम 2 क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई करते हैं. एक होता है Lawley's classification and second is McNeil's classification. Lawley's classification, according to this classification, prostate gland is classified into 5 lobes. और मैकनील्स क्लासिफिकेशन होता है, उसमें जोन वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं. तो व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट? जो प्रोस्टेट ग्लैंड का एक स्पेसिफिक पोर्शन बीपीएच के लिए कॉमन है, प्रोन है, जहां बीपीएच कॉमनली होता है, एक स्पेसिफिक पोर्शन कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट के लिए कॉमन है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. तो अकॉर्डिंग टू Lawley's classification, prostate is having 5 lobes: anterior lobe, posterior lobe, median or middle lobe, right lateral lobe, and left lateral lobe. So the carcinoma of prostate is common in posterior lobe, whereas the benign hyperplasia is common in median or middle lobe. This is the same. Carcinoma is common in posterior lobe, and the benign hyperplasia common in medial lobe. So this is second classification, McNeil's classification of prostate. According to this classification, prostate gland is divided into peripheral zone, central zone, and transitional zone. The peripheral zone or outer zone, carcinoma is common in this peripheral zone, and the benign prostatic hyperplasia is common in the central zone. This is urethra. So this classification, क्योंकि सेंट्रल जोन में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कॉमन है, इसके लिए बेनाइन हाइपरप्लेजिया में फर्स्ट सिम्टम यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है. लेकिन क्योंकि कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट पेरिफेरल जोन में होता है, इसलिए कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट का पेशेंट will not present with obstructive symptoms. Is it clear? Prostate is the capsulated gland. It has true capsule. जो deep capsule होती है उसको true capsule बोलते हैं.
जो आउटर कैप्सूल होती है उसको फाल्स कैप्सूल बोलते हैं। और कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट में ड्यू टू कॉम्प्रेशन ऑन द प्रोस्टेटिक टिश्यू एक और कैप्सूल नजर आती है जिसको पैथोलॉजिकल कैप्सूल बोलते हैं। दैट इज नॉट रियल कैप्सूल, बट बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इट लुक्स लाइक कैप्सूल, सो इट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल कैप्सूल। नाउ फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट, function of prostate gland, the glandular activity is under control of androgen, the sex hormone, and the estrogen circulating in the blood stream। मतलब इसमें तीनों कंपोनेंट है, ग्लैंडुलर कंपोनेंट है, मस्कुलर कंपोनेंट है और फाइब्रस कंपोनेंट है। तो जो ग्लैंड्स होते हैं उनका काम सिक्रीशन होता है। तो प्रोस्टेट का सिक्रीशन अंडर द कंट्रोल ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। प्रोस्टेट सिक्रीट्स 0.52 ml प्रोस्टेटिक फ्लूइड पर डे। Prostate secretion contributes 10 to 20% of ejaculate and increases bulk of semen. This is the function of prostate, one of the function. Prostatic secretion contains citric acid, acid phosphatase, prostaglandin, zinc and fibrinogen. All these contains having protective property for sperm. Protective property for sperm. The prostate secretion also contains salicylic acid which help in penetration and fertilization of sperm into the ovum. So this is the function of prostatic secretion. Prostatic secretion में जो contents होते हैं वो sperms के लिए protective होते हैं, sperm के penetration के लिए ovum के अंदर और fertilization में help करते हैं। Zinc भी एक content होता है, so due to presence of zinc, prostate gland is prone to chronic inflammation। जहाँ zinc होता है वहाँ bacteria colonies formation ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड में chronic inflammation, bacterial inflammation occurs in prostate due to zinc. Increased level, we are trying to cover the clinical part of anatomy and physiology. So increased level of acid phosphatase indicates C of prostate. जब हम ब्लड में एसिड फॉस्फेटेज करते हैं और अगर वो इंक्रीज होता है तो उसका वन ऑफ द रीजन इज कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। एसिड फॉस्फेटेज बहुत सारे रीजंस की वजह से बढ़ता है, उनमें से एक रीजन कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट भी है। सो एटियोलॉजी ऑफ बीपीएच, व्हाई बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया टेक्स प्लेस। देयर आर टू थ्योरीज, हार्मोनल थ्योरी एंड नियोप्लास्टिक थ्योरी। ये दोनों हाइपोथेसिस है, दोनों भी 100% कंफर्म नहीं है, बट इट इज गिवन इन ऑल ऑथेंटिक बुक्स। सो अकॉर्डिंग टू हार्मोनल थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो होता है वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोस्टेट, आप जानते हैं कि एक ग्लैंड्स भी है और उसका सिक्रीशन जो है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन के कंट्रोल में होता है। तो हार्मोनल थ्योरी के अकॉर्डिंगली प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। डू यू नो ऑल in male and female both hormones are present or only male hormone are present? Ayurvedic please, both hormones are present। in male female hormone secreted from उस्मा, मैं अपने स्टूडेंट्स को नाम लेके कॉल करने का आदि हूँ। मेल फीमेल में दोनों हार्मोन होते हैं। मेल में मेल हार्मोन डोमिनेट, मैं थोड़ा बेसिक्स पे बात करने का आदि हूँ। आज मेरा क्लास में फर्स्ट लेक्चर था, मैं समझ रहा हूँ ये वही लेक्चर हो रहा है। वेडनेसडे को मेरे 2 लेक्चर होते हैं। हम पढ़ाते हैं सर्जरी के साथ शेरजरी बोलते हैं, उसमें शेर भी पढ़ाते हैं इसलिए शेरजरी बोलते हैं उसको। तो शेर रह गया, कागज के फूल रास्ता रोकेंगे आपका, कागज के फूल रास्ता रोकेंगे आपका, खुशबू जिधर बुलाए उधर जाइएगा आप। थैंक यू। तो हार्मोनल थ्योरी कहती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। बात ये चल रही थी कि मेल में फीमेल हार्मोन कहां से आते हैं और फीमेल में मेल हार्मोन कहां से आते हैं। आप थोड़ा फाइनल ईयर में आते आते भूल जाते हैं एनाटॉमी, सो जस्ट आई वांट टू रिवाइज इट। होते हैं या नहीं होते हैं? कहां से आते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है। दिस इज द समरी। अकॉर्डिंग टू हार्मोनल थ्योरी, जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे मेल हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिकुलर एज रिलेटेड डिजनरेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रीट होता है, एज रिलेटेड डिजनरेशन होता है। जैसी एज एडवांस होती है तमाम बॉडी के टिश्यूज में एजिंग डिजनरेशन होता है, आप सब मानते हैं।
आयुर्वेद भी मानता है, होम्योपैथ भी मानता है, यूनानी भी मानता है। तो एज रिलेटेड डिजनरेशन की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल with advancement of age gradually but significantly start decreasing. So with advancement of age, serum testosterone level decreases slowly but significantly. Serum estrogen steroids level does not decrease. मतलब ये मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, ये मेल में एस्ट्रोजन का लेवल है। एज बढ़ रही है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल एज इट इज है। तो इसकी वजह से जो इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये हार्मोनल थ्योरी कहती है। क्योंकि एज एडवांसमेंट के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, लेकिन एस्ट्रोजन लेवल एज इट इज होता है, तो उसकी वजह से इनका जो गैप होता है वो कम होता चला जाता है, और इस इम्बैलेंस के नतीजे में प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है। दिस इज हार्मोनल थ्योरी। सेकंड इज नियोप्लास्टिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू नियोप्लास्टिक थ्योरी, प्रोलिफरेशन ऑकर्स एज एजिंग इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है, वैसे ग्लैंडुलर एलिमेंट में, मस्कुलर एलिमेंट में और फाइब्रस एलिमेंट में प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है, और उस प्रोलिफरेशन की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो दीज आर टू थ्योरीज। आपको अगर उसका समरी भी याद रख सके तो इनफ है। वन इज हार्मोनल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ड्यू टू इम्बैलेंस इन एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया occurs. And as per the neoplastic theory, with advancement of age, proliferation starts in the all component of the prostate gland, and because of this reason prostatic enlargement occurs. Now the clinical features. Benign prostatic hyperplasia में mainly दो types के symptoms होते हैं, obstructive symptoms और irritative symptoms. हम जब बात करते हैं तो बेसिक की बात करते हैं, प्रोस्टेट से हमने बात शुरू की। What are the other diseases of prostate gland? We are discussing benign prostatic hyperplasia. Prostatitis, very good. Acute prostatitis or chronic prostatitis, specific or non-specific infection, carcinoma of prostate, or sometimes calculus can form in prostate. That is called prostatic calculus. What is prostatism? We are going to clear the terminology also in our lectures usually. What is prostatism? रोशन चिराग चश्मे बसीरत है राह में, रोशन चिराग चश्मे बसीरत है राह में, गोया तुम आ रहे हो मेरी बज़्म-गाह में। This is welcoming शेर in Urdu literature. रोशन चिराग चश्मे बसीरत है राह में, गोया तुम आ रहे हो मेरी बज़्म-गाह में। What is prostatism? अब सब भूल जाएंगे, आपको शेर याद रहेगा कि प्रोस्टेटिज्म के टाइम कुछ शेर तो था। क्या होता है प्रोस्टेटिज्म? This is the broad term. Any symptoms occurs due to enlargement of prostate gland is prostatism. प्रोस्टेट ग्लैंड के enlargement की वजह से जितने सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो चाहे वो इरिटेटिव हो, उन तमाम सिम्टम्स को कलेक्टिवली प्रोस्टेटिज्म बोलते हैं। वो सिम्टम्स चाहे बीपीएच की वजह से हो, वो सिम्टम्स चाहे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से हो, वो सिम्टम्स चाहे कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट की वजह से हो, या वो सिम्टम्स चाहे कैलकुलस ऑफ प्रोस्टेट की वजह से। ओके, सो द ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो मेडियल लोब में होता है या सेंट्रल जोन में होता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है तो इट डायरेक्टली कॉजेस कंप्रेशन ऑफ यूरेथ्रा। So due to compression of urethra, obstruction to the urine outflow. So these are the obstructive symptoms. Poor urinary stream, hesitancy, intermittency, terminal dribbling, incomplete emptying of bladder, acute or chronic retention, acute on chronic retention. The symptoms need to explain. Poor urinary stream due to obstruction, hesitancy. What is intermittency? Is the intermittency and frequency same? तो स्पेलिंग अलग अलग है इसलिए अलग है। What is intermittency? What is frequency? अपनी भाषा में बोलिए। बार बार यूरिन होना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वॉल्यूम कितनी भी हो, लेकिन अगर पेशेंट को बार बार यूरिनेशन फील हो रहा है तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। What is intermittency?
लॉन्ग टाइम 6 घंटे में। इंटरमिटेंसी मीन्स व्हेन पेशेंट ऑफ बीपीएच पासिंग यूरिन वक्फे से पास होता है, ठीक है। एक साथ अगर पेशेंट को 100 ml 200 ml यूरिन पास करना है तो उसको 2-3 टाइम मतलब रुक के पेशाब होता है। इंटरमिटेंसी मतलब रुक के पेशाब होना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिनेशन टाइम बढ़ जाता है। तो नॉर्मली इफ यू टेक टाइम 30 सेकंड और 1 मिनट फॉर यूरिनेशन, द पेशेंट ऑफ बीपीएच टेक्स 5 to 10 minutes फॉर यूरिनेशन। Got my point? That is intermittency, which is not same as frequency. Terminal dribbling, incomplete emptying of bladder. मतलब अगर ब्लेडर में कितनी कैपेसिटी है ब्लेडर की, 200 ml 300 ml, अलग अलग सबकी एवरेज 300 ml 500 ml और 700 ml के बाद वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है। तो इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर मतलब जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन ब्लैडर में जमा रह जाता है, बाकी रह जाता है, एक्युमुलेट होता है। उसको क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो सोनोग्राफी में कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम 5-10 ml इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर 50 ml है, 100 ml है, 150 ml है, मींस सिग्निफिकेंट रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब पेशेंट इज हैविंग ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, patient is unable to pass complete amount of urine which is collected in the bladder. Okay, so incomplete emptying of bladder, due to this reason patient is having chronic retention. You know the acute retention, you know the chronic retention, you know what is acute and chronic retention? कोई बताए? For my student मुस्लिम, मुनीब, अफजल, बुशरा, उज़मा, श्रुति, पार्वती, यही सब नाम होते होंगे। है कोई श्रुति? कोई बताए? What was my question, madam? Acute retention means what? Patient unable to pass urine. उसको यूरिन accumulated है ब्लैडर में, ब्लैडर डिस्टेंडेड है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट है, पेन है उसको, लेकिन पेशेंट इज अनेबल टू पास यूरिन बिकॉज ऑफ आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एनी रीजन। कभी कभी कैलकुलस आके इंपैक्ट हो जाता है ब्लैडर की नेक पर, उसकी वजह से भी रिटेंशन होता है। तो वैसे ही बीपीएच की वजह से भी एक्यूट रिटेंशन होता है। तो एक्यूट रिटेंशन मींस पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स, सडनली द यूरिन पैसेज ऑफ यूरिन स्टॉप्स, दैट इज एक्यूट रिटेंशन। व्हाट इज क्रॉनिक रिटेंशन? जब पेशेंट यूरिन पास करता है थोड़ा अमाउंट ब्लैडर में बच जाता है, जैसा मैंने कहा इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, दैट इज क्रॉनिक रिटेंशन। व्हाट इज एक्यूट और क्रॉनिक रिटेंशन? क्रॉनिक रिटेंशन हमेशा पेशेंट को भी नहीं मालूम होता है कि मुझको क्रॉनिक रिटेंशन है या मुझको ब्लैडर में कुछ अमाउंट यूरिन का बचा हुआ है, वो सोनोग्राफी बताती है, ठीक है। या तो जब उसमें इन्फेक्शन होता है, अक्यूमुलेटेड यूरिन में बर्निंग मिक्सचुरेशन होता है, स्टेसिस के सिम्टम्स होते हैं, तब उसको पता चलता है। सो व्हाट इज एक्यूट और क्रॉनिक रिटेंशन? पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग क्रॉनिक रिटेंशन ड्यू टू बीपीएच, पेशेंट ने अल्कोहल लिया, उसकी वजह से प्रोस्टेट में कंजेशन हुआ, उसकी वजह से उसको सडन यूरिन स्टॉप हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्यूट ऑन क्रॉनिक रिटेंशन। तो यू ऑल must remember all three terms: acute retention, chronic retention and acute on chronic retention. Okay, so these are the obstructive symptoms. Irritative symptoms are frequency, number of urination increases, that is frequency, urgency, patient unable to hold urine, nocturia, frequency at night time, and dysuria. Dysuria means painful micturition or micturition with discomfort. Okay, so these are the irritative symptoms. Essential of diagnosis: frequency, urgency, nocturia, dysuria, poor urinary stream, hesitancy, intermittency. Terminal, these all symptoms. देखिए, जब पेशेंट अबव 50 आपके पास यूरिनरी सिम्टम्स लेकर आता है तो आपके डायग्नोसिस में फर्स्ट डायग्नोसिस ही बीपीएच होता है, राइट, बिकॉज इट इज सो कॉमन. सो दिस इज एसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय सोनोग्राफी, यूएसजी केयू भी करते हैं, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, तो उसकी वजह से या यूएसजी डायरेक्टली प्रोस्टेट करते हैं. तो अगर आपने यूएसजी प्रोस्टेट किया है तो सिर्फ आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज, शेप, वेट मालूम पड़ेगा और रेसिडुअल वॉल्यूम मालूम पड़ेगा. हाउ रेसिडुअल वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड? सोनोलॉजिस्ट पेशेंट को बोलता है पानी पी के पेशाब रोक के आओ,
दिस इज माई स्टाइल टू क्लियर ऑल द बेसिक थिंग्स। एक बार सोनोग्राफी सोनोलॉजिस्ट करता है विद फुल ब्लेडर, एक बार सोनोलॉजिस्ट कहता है आप यूरिन पास करके आओ, फिर सोनोग्राफी करता है, तो उसके बाद जो सेकंड टाइम सोनोग्राफी होती है उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम मालूम पड़ता है। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, सोनोलॉजिस्ट आपको रिपोर्ट में देता है। इज इट क्लियर? इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल सिम्टम्स से 90% डायग्नोसिस हो जाती है, क्योंकि कॉमन कंडीशन है। एजिंग मेल में ऑब्स्ट्रक्टिव इरिटेटिव सिम्टम्स अगर है तो 90% प्रोस्टेटिज्म की वजह से है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से है। पीआर एग्जामिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन में एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम पे आप प्रोस्टेट को पाल्पेट कर सकते हैं, इनलार्ज प्रोस्टेट को। नॉर्मल प्रोस्टेट कैन नॉट बी पाल्पेटेड ऑन पीआर एग्जामिनेशन, enlarged prostate is palpated on anterior wall of the rectum. Then sonography, normal weight 8 to 20 grams, IVP to study renal changes, cystoscopy, renal function test, prostate specific antigen, CT, MRI. तो अगर सिर्फ प्रोस्टेटिज्म का या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को डायग्नोस करना है तो USG इज इनफ। बैक प्रेशर इफेक्ट को डायग्नोस करना है तो IVP, सिस्टोस्कोपी, RFT वगैरह वगैरह, CT स्कैन, MRI। CT स्कैन एंड MRI is basically important for carcinoma of prostate or for differential diagnosis of BPH with carcinoma. What is PSA? Prostate specific antigen। सीरम में करते हैं, सबको मालूम है, ब्लड कलेक्शन करते हैं, उससे PSA करते हैं। ठीक है, क्या नॉर्मल वैल्यूज होती है? 4.0 nanogram up to 4.0 nanogram is normal. 4 to 10 indicates carcinoma of prostate. तो जब BPH को carcinoma of prostate से डिफरेंशिएट करना होता है तो PSA करते हैं। लेकिन ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें एडवांस कार्सिनोमा होता है, PSA नॉर्मल होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो PSA रेज्ड होता है लेकिन कार्सिनोमा नहीं होता। Okay, but still it is one of the parameter for diagnosis of carcinoma of prostate. CT, MRI for diagnosis of CA prostate. Now differential diagnosis, benign prostatic hyperplasia, ये सब sections जितने, ये सब पार्ट जितने हैं लेक्चर के, ये सब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हमने ट्राई किया है उसको प्रिपेयर करने की। BUMS के फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में सिस्टेमिक सर्जरी में BPH 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस डिटेल्स। ओके, तो किन चीजों से डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया को? CA प्रोस्टेट से, और कैडबरी क्वेश्चन है जो बताएगा उसको, कैडबरी पास होने के बाद मिलेगी। किस चीज से डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए जी? इलाजमेंट है, एग्रीड। प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर्स के अलावा भी एक कंडीशन है जिससे प्रोस्टेट को डिफरेंशिएट किया जाता है क्लिनिकल ग्राउंड पर, दैट इज यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, बिकॉज यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर में भी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं। सो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, BPH is carcinoma of prostate. Other important differential diagnosis, BPH with urethral stricture. Okay, so this is differential diagnosis of BPH with carcinoma of prostate. एज बहुत इंपॉर्टेंट है। BPH का पेशेंट यूजुअली यंगर होता है, 50s में होता है। CA प्रोस्टेट का पेशेंट यूजुअली एडवांस एज में, या CA प्रोस्टेट यूजुअली अबाउ 70 अबाउ 60 होता है। तो अगर आपके पास 50s में पेशेंट यूरिनरी सिम्टम्स लेकर आ रहा है तो मोस्टली BPH है। और जैसा आपने देखा कि CA प्रोस्टेट जो है उसका अर्ली प्रेजेंटेशन ऑब्स्ट्रक्टिव या यूरिनरी सिम्टम्स के साथ नहीं होता। तो फर्स्ट एज इज इंपॉर्टेंट, यूजुअली अबाउ द 50 years पेशेंट हैविंग BPH, above the age of 60 years or more patient carcinoma of prostate is common. Patient with BPH commonly present with symptoms of bladder outlet obstruction, that is frequency, urgency, nocturia वगैरह वगैरह, whereas the patient of carcinoma of prostate commonly present with symptoms of metastasis. क्योंकि कार्सिनोमा पेरिफेरल जोन में होता है, पोस्टीरियर लोब में होता है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के साथ पेशेंट नहीं आता है। BPH का पेशेंट आपके पास यूरिनरी सिम्टम्स के साथ आता है, CA प्रोस्टेट का पेशेंट आपके पास मेटास्टेटिक सिम्टम्स के साथ आता है। शियाटिका लेके आता है, अनयूजुअल बोन पेन लेके आता है। 60-70 साल की उम्र में शियाटिका नहीं होता, अनकॉमन है। तो इफ पेशेंट कम्स टू यू विथ शियाटिका और अनयूजुअल बोन पेन, यू हैव टू थिंक अबाउट CA प्रोस्टेट। डायग्नोसिस, कंफर्म
of BPH by USG, diagnosis confirm of CA prostate by CT MRI and prostate specific antigen. Treatment of BPH, conservative treatment and surgical treatment. Conservative treatment में we will discuss modern treatment and Unani treatment. In surgical treatment, close method होता है जिसको बहुत common है TURP, transurethral resection of prostate. सेकंड इज ओपन मेथड में दो टाइप की सर्जरी होती है, अप्रोच के अकॉर्डिंगली सर्जरीज को डिवाइड किया गया है। एक ट्रांस वजाइकल अप्रोच होता है, उसको फ्रेयर्स प्रोस्टेटेक्टोमी कहते हैं थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा अप्रोच होता है रेट्रोप्यूबिक, उसको मिलियंस प्रोस्टेटेक्टोमी कहते हैं, एंड पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टोमी। तो अकॉर्डिंग टू अप्रोच, किस अप्रोच से प्रोस्टेट के पास जा रहे हैं, किस रूट से हम प्रोस्टेट को अप्रोच कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज ट्रांसवाजाइकल अप्रोच, फ्रेयर्स प्रोस्टेटेक्टोमी, रेट्रोप्यूबिक अप्रोच, मिलियंस प्रोस्टेटेक्टोमी एंड पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टोमी. दिस इज ओपन सर्जरीज. Facts to be understood in treatment of BPH. First of all, so all patients of BPH do not require treatment and it should be considered as aging effect if remain symptom free. अगर पेशेंट को इंसिडेंटली हाइपरप्लेजिया डायग्नोस होता है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है तो उसको इलाज करने की जरूरत है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं. तो ट्रीटमेंट की क्या इंडिकेशंस है? ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, इरिटेटिव सिम्टम्स, यूरिनरी रिटेंशन, सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ बीपीएच एंड रेनल इनसफिशिएंसी. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बीपीएच की वजह से क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बैक प्रेशर इफेक्ट हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, रेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है. स्टेसिस ऑफ यूरिन होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है. डायवर्टिकुलम हो सकता है, हर वो चीज जो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है वो डायवर्टिकुलम ऑफ ब्लैडर कॉज कर सकती है. व्हाट इज डायवर्टिकुलम ऑफ ब्लैडर? एक्स्ट्रा पाउच फॉर्मेशन हो जाता है ब्लैडर में ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ ब्लैडर. ट्रीटमेंट ऑफ मॉडलिटीज, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच. इंडिकेशंस ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स अगर है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. रेसिडुअल वॉल्यूम अगर 150 ml या उससे कम है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. अगर यूरोफ्लोमेट्री में पीक फ्लो रेट ऑफ यूरिन इज मोर देन 15 ml है, मतलब फ्लो प्रॉपर है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. और अगर कोई बैक प्रेशर इफेक्ट किडनी पर नहीं है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. दीज आर द इंडिकेशंस फॉर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. एडवाइस टू द पेशेंट ऑफ बीपीएच. Patient is advised to avoid alcohol because alcohol causes congestion of prostate and patient may present with acute retention. So patient को alcohol avoid करने के लिए कहेंगे. Patient should advise to avoid postponement of micturition. Postpone नहीं करने का micturition उसकी वजह से. Patient advised to avoid exert pressure on passing urine. हम बात कर रहे थे differential diagnosis की. तो एक differential diagnosis हमने बताया CA prostate with BPH. The another differential diagnosis is urethral stricture. तो उसमें differential diagnosis आप BPH से कैसे करेंगे? जैसे BPH में पेशेंट 50s में होता है, urethral stricture यूजुअली अर्ली एज में होता है, 40s में होता है. तो कंपेरेटिवली यंगर पेशेंट होता है urethral stricture का. और इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है क्लिनिकली कि जब पेशेंट यूरिन पास करने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है, तो अगर स्ट्रीम और पुअर होती है इसका मतलब बीपीएच है, क्योंकि जब पेशेंट प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो प्रोस्टेट और ज्यादा कंप्रेस करेगा यूरिथ्रा को, तो स्ट्रीम यूरिन की और ज्यादा पुअर होगी, यूरिनेशन रुक जाएगा. लेकिन जब यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का पेशेंट प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसकी स्ट्रीम इंप्रूव होती है, ही इज एबल टू पास द यूरिन. तो अगर प्रेशर एक्सर्ट करने पेशेंट आपके पास आकर ये हिस्ट्री देता है कि व्हाइल पासिंग ऑन यूरिन व्हेन आई एक्सर्ट प्रेशर my urinary stream becomes more poor and more poor, that is BPH. If patient gives history that on exert of pressure I am able to pass urine, that is probably urethral stricture. Modern conservative treatment, number of drugs used for treatment of BPH: alpha reductase, alpha blockers, non-selective alpha blockers, selective alpha blockers and long-acting alpha blockers. Unwanted effects of modern drugs used in treatment of BPH. This is the need of Unani or Ayurvedic or alternative treatment for BPH. The modern treatment having many unwanted effects. So I have tried to collect few examples. Urimex बहुत commonly use होता है BPH के पेशेंट को, 0.4 मिलीग्राम हम देते हैं. टेम्सुलोसिन होता है उसमें,
उसकी वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, डिजीनेस होता है, नजल कंजेशन होता है। व्हाट इज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन? कैन एनीबडी प्लीज एक्सप्लेन? नॉर्मली at the time of sexual intercourse, at the time of orgasm, semen comes out through urethral opening. That is ejaculation. Agreed? In retrograde ejaculation, at the time of sexual intercourse, at the time of orgasm, semen does not comes out, but it enters into the bladder. That is retrograde ejaculation. That is not harmful, but it causes male infertility. Okay? Previous, please. Second is dutasteroid and tamsulosin. This is compound drug. Dutasti very commonly used for treatment of BPH. वो जो बहुत commonly use होती है tablets, उसके मैंने trade name इस यहाँ लिखे हैं और उनके common side effects. Please, what is the side effects of dutasteroids? Impotence, decreased libido, breast pain, ejaculation disorders, dizziness. This is the unwanted effects of the tamsulosin. Hypotension, dizziness, drowsiness, weakness, diarrhea, headache, chest pain, ejaculation disorders, decreased amount of semen, back pain, blurred vision and tooth problem. This is alphazocin, dizziness, headache, tiredness. This is silidocin, retrograde ejaculation, orthostatic hypotension, मतलब positional hypotension. पेशेंट हिस्ट्री देता है, जब मैं लेट कर बैठता हूँ तो चक्कर आती है, जब बैठकर खड़े होता हूँ तो चक्कर आती है. That is positional hypotension. That is also called as orthostatic hypotension. Dizziness, headache, nasal congestion and diarrhea. These are the side effects. तो आपने देखा कि कॉमनली साइड इफेक्ट जो प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज होती है, उससे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, एजुकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, इंपोर्टेंस होता है, इनफर्टिलिटी होती है. दिस इज द मेन साइड इफेक्ट्स अलॉन्ग विद डिजीनेस, डायरिया, हेडेक, हाइपोटेंशन एटसेट्रा. प्रिवेंशन ऑफ बीपीएच 100% प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है. जैसे एक उम्र के बाद बाल सफेद होना शुरू होते हैं, वैसे एक उम्र के बाद प्रोस्टेट इनलार्ज होना शुरू होता है. We cannot prevent it 100%, but up to certain percent we can prevent. Low fat, high protein diet, low carbohydrate, low animal fat, high essential fatty acids, plenty of oral fluids, high fiber diet, soya bean. Tomato, soya bean, crabs, red berries, citrus fruits and food, etc. are beneficial for BPH patients. Corn silk extract 15 drops in cup of water. जो आप मकई का भुट्टा होता है उस पर जो रेशे होते हैं, उसका अगर आप एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसको 15 ड्रॉप्स एक कप पानी के साथ देते हैं तो दैट इज वेरी इफेक्टिव इन बीपीएच. प्रिकॉशन, अल्कोहल, कैफीन, रेड मीट, निकोटीन आर हार्मफुल फॉर बीपीएच पेशेंट्स. ये यूनानी और आयुर्वेद का स्टाइल है कि हम डाइटरी प्रिकॉशंस बताते हैं. मॉडर्न मेडिसिन में इसका बहुत कम रोल बताया जाता है, लेकिन ये यूनानी और आयुर्वेद मेडिसिन का सिग्निफिकेंट है कि जिसमें डाइटरी प्रिकॉशन हर डिसीज के साथ बताए जाते हैं. यूनानी एस्पेक्ट ऑफ बीपीएच. इन यूनानी लिटरेचर बीपीएच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज उज़्मे गुद्दे मज़ी, वर्मे गुद्दे मज़ी, वर्मे उनके मसाना, वर्मे मजरे मसाना, सलह गुद्दे मज़ी. दिस आर द यूनानी टर्म्स यूज्ड फॉर बीपीएच. व्हाट आर द अलामात? उसरे बॉल, डिस्यूरिया, एहतसाब बॉल, रिटेंशन ऑफ यूरिन, तकतीर बॉल, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, तसलसुल बॉल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, तजब्जुब बॉल, हेजिटेंसी. These are the यूनानी टर्म्स. आयुर्वेद वाले थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हम भी मुस्कुराते हैं आपकी टर्म्स पे. असबाब मीन्स एडियोलॉजी. You should understand the importance of our originality, right? So your literature is in Sanskrit, you have to remember Sanskrit language. Our literature is in Arabic, we have broadly to explain it the Arabic language, right? तो प्रोस्टेट ग्लैंड की एटियोलॉजी में हिपोक्रेटिक हमको एक वो मिलता है एविडेंस, और अबू सहल मसही एक यूनानी एमिनेंट फिजिशियन है, उनका हमको रेफरेंस मिलता है. तो बुकरात ने क्या कहा है, जहां पर देखिए यूनानी लिटरेचर के हिसाब से डिसीजेस आर क्लासिफाइड इनटू अकॉर्डिंग टू द 4 ह्यूमरल थ्योरी ऑफ हिपोक्रेट. सौदा, सफरा, बलगम, दम, जैसे आपके यहाँ वात, पित्त, कफ होता है. तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमरल थ्योरी, I am talking with Ayurvedic people specially. According to humoral theory, 4 humoral theory of Hippocrates, any imbalance, either quantitative or qualitative, in the 4 humors results in diseases, and balance result in health. Okay? तो according to this 4 humoral theory, जब बलगम जो एक ह्यूमर है, जब गलीज और मवादे फासिद और गलीज बलगम जमा हो जाता है तो सॉफ्ट स्वेलिंग होती है. जब एबनॉर्मल सौदा जमा होता है तो हार्ड स्वेलिंग होती है.
तो ये प्रिंसिपल बुकरात ने दिया है कि जितने भी बेनाइन ट्यूमर्स है वो बलगम के जमा होने की वजह से होते हैं, जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सौदा उसकी वजह से होते हैं। तो सौदा जितनी हार्ड स्वेलिंग होती है वो सौदा के एक्युमुलेशन की वजह से होती है, जितनी सॉफ्ट स्वेलिंग होती है वो बलगम के एक्युमुलेशन की। तो बीपीएच इज कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल गलीज बलगम। यूनानी मैनेजमेंट ऑफ प्रोस्टेट हम उसूल इलाज पे बात करते हैं, फिर इलाज पे बात करते हैं। उसूल इलाज मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट? तनकिया मवाद, तहलील वर्म और इखराज बौल। मतलब मवाद का तनकिया करते हैं, बलगम जो गलीज जमा हुआ है उसको वहां से खारिज करते हैं। तहलील वर्म करते हैं क्योंकि स्वेलिंग है तो उसको डाइल्यूट करते हैं, उसको मुहल्लिल एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। और इखराज बौल अगर रिटेंशन है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन आवर यूनानी पैथी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आर इलाज बिल गिजा, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल दवा और इलाज बिल यद। राइट, मीन्स डाइटोथेरापी, रेजिमिनल थेरापी, मेडिकल मैनेजमेंट और फार्मेकोथेरापी और सर्जिकल ट्रीटमेंट। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, इसमें यही बताया गया है कि अग़ज़िया मतलब डाइट्स, अग़ज़िया हामिज़ा, गलीज़ा, काबिज़ा, ये सब हामिज़ ग़िज़ाएं, काबिज़ ग़िज़ाएं, गलीज़ ग़िज़ाएं बीपीएच के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। इलाज भी तदबीर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन मीन सिट्स बात। तो बहुत सारे पेशेंट्स बीपीएच के सिर्फ ऑप्शन को ही बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको ओरल मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप बीपीएच के पेशेंट को चाहे आयुर्वेदिक फार्मूला है चाहे यूनानी फार्मूला हो, अगर आप उनको सिट्स बात देते हैं 15 दिन तक के लिए, तो सिट्स बात की वजह से प्रोस्टेट श्रिंकन हो जाता है, उसकी वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, यूरिनरी सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ नुस्खे हैं जोशानदे के, जोशानदे बाबूना, नाखुना, खत्मी, मेथी, परसियाओशा वगैरह वगैरह। ये दूसरा नुस्खा है बाबूना, बनफशा, मर्दनजोश वगैरह वगैरह। सो दीज आर द डिफरेंट नुस्खास फॉर ऑब्जन। टिकोर मतलब हॉट फर्मेंटेशन ऑन सुप्रापिबिक रीजन विद डिकॉक्शन ऑफ बुलेट टिश्यू। इलाज विद दवा, ये जोशानदे के नुस्खे हैं जो प्रोस्टेट में इंपॉर्टेंट है। इज़खर, ईरसा, अफसंतीन, डिकॉक्शन इन मॉर्निंग। सेकंड इज गुले, बनफशा और सोफ, 6 माशा, मुइज मुनक्का, बीख कासनी, बीख कुर्तुम, खत्मी, मको वगैरह वगैरह। ये कुछ नुस्खे हैं जो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट में इफेक्टिव है, जोशानदे के, ओरल जोशानदे के। माउल उसूल विद कैस्टर ऑयल इज इफेक्टिव। सिरका सेब अलॉन्ग विद शहद, ये बहुत छोटा नुस्खा है। अगर आप बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट को इक्वल क्वांटिटी में सेब का सिरका और शहद मिला के देंगे 15 दिन तक के लिए रात में सोते वक्त, तो दैट दिस इज इफेक्टिव फॉर बीपीएच। सिरका सेब एंड शहद इन इक्वल क्वांटिटी। सुफूफ मतलब पाउडर, खारे खसक, इस पर मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, टाइम कम है। खारे खसक, करंजुआ, सुपारी, शतावरी, बबूल, कुल्थी, घिगवार along with शरबत बुजुरी मोतदिल 20 ml. This is very effective नुस्खा for BPH. जंजबील, तुरबुत, मस्तगी each 4.5 to 7.5 gram. This is नुस्खा for powder. Compound यूनानी formulation effective in BPH are बनादिकुल बुजुल tablets 2 BD और बलोती 1 tablet BD. इतरफर वुदूदी along with शरबत मुहल्लिल, हब्बे अयारिज, अतरीफल सगीर, शरबत दीनार, हब्बे हिंदी and local application के लिए रोगने बाबुना, रोगने गुल, रोगने खस. These are the references. Thank you very much. Any question, please? Two minutes for question answer. I am available here. I am a small student of medicine. बहुत थोड़ा यूनानी जानता हूँ, बहुत थोड़ा मॉडर्न जानता हूँ. Any question, please? From Ayurvedic side or homeopathic side or Unani side? मंजिल की जो तजु में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जाए कि मंजिल तुझे पुकारे. थैंक यू वेरी मच.